All right, let's talk about Arsenal and Havertz की injury, and we'll talk about all the components from the boards to the club direction and everything. And इस पे कुछ head loss नहीं होगा. We'll talk calmly, we'll talk rationally. तो अगर किसी ने इस पे क्लिक किया है मिर्च मसाला के लिए, गुस्से वुस्से के लिए, वो इस वीडियो में नहीं मिलेगा. We'll talk about Arsenal, and it's going to be a serious discussion. न्यूज़ पे सबसे पहले आता है. Kai Havertz has torn his hamstring. एक दुबई में ट्रेनिंग सेशन हो रहा था and he's torn his hamstring during a training session. Now usually ट्रेनिंग के टाइम आप अपनी hamstring tear नहीं करते हो because trainings are meant to usually be a little more less intense than matches, but it's very understandable कि Arsenal एक match intensity level पे training क्यों कर रही थी because we haven't played a game. अब जब हम लेस्टर को खेलेंगे हमें खेले हुए 11 दिन हो जाएंगे and you need to build back fitness. You can't just suddenly train at 50% and then suddenly match के लिए आप 100% ready हो जाते हो. So I completely understand कि हम warm weather में ऐसी training क्यों कर रहे थे, but the end result is Kai Havertz has torn his hamstring. ये isolation में नहीं है इंसिडेंट. अगर आप आर्सेनल को फॉलो करते हैं, if you've been watching Havertz, you would see कि he has been running every single game that he's been played. He's been playing pretty much 90 minutes every game. Carabao Cups and FA Cup में ही came on and उसका भी मतलब it was 120 minutes that game. Premier League games में खेला and especially games in the Premier League, especially Wolves, this guy could not run. आप मैच के बाद देखो या मैच के ड्यूरिंग देखो, there are clips around the internet जहाँ पे Kai Havertz is clutching his hamstrings. There was supposed to be scans on Kai Havertz की hamstrings anyway after a couple of games and he was a doubt for the Carabao Cup game anyway. But Havertz played, Havertz ran. Game का कुछ नहीं हुआ, but it was good to see somebody still fighting for us and giving it his all, despite not being a fan favorite. Havertz का सीजन काफ़ी कंफ्यूजिंग है बिकॉज ही इज़ हैड सम रियली टेरेबल गेम्स. मैन यूनाइटेड वाला गेम बहुत अच्छे से याद आता है. बट ओवरऑल अगर आप उसके सिर्फ नंबर्स देखोगे, इन आइसोलेशन इन नंबर्स आर फाइन. आई थिंक इस सीज़न उसके 19 या 20 गोल्स एंड असिस्ट्स हो गए हैं. एंड आई थिंक अगर वो सीज़न फिनिश करता तो वो 25-27 तक पहुंच ही जाता गोल्स एंड असिस्ट्स के. विच अगेन इफ़ यू वांट टू विन द लीग इट हैज़ टू बी मो साला लेवल, जो अभी हिमसेल्फ इज़ एट लाइक 44 गोल्स एंड असिस्ट्स. बट इट्स नॉट अ बैड रिटर्न फ्रॉम समबडी जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा नंबर 9 है. हिम बीइंग आउट नाउ लीव्स अस विद टू सीनियर अटैकर्स विच इज़ लियांड्रो ट्रॉसार्ड एंड रहीम स्टर्लिंग. अगर आप इसमें इथो ननेरी को जोड़ोगे जो एक 17 साल का लड़का है, दैट मेक्स इट 3 अटैकर्स. Gabriel Martinelli is injured, Bukayo Saka is injured, Kai Havertz is injured, and Gabriel Jesus is injured. Now, I understand जब ये न्यूज़ आई Havertz की, everyone lost their head, including me. बट ये सोचने की बात है दैट नो अमाउंट ऑफ स्क्वाड प्लानिंग कैन prepare you for having your 3 first choice attackers out. Saka, Martinelli, Havertz. किसी भी गेम में आप चाहोगे ये 3 हमारे स्टार्ट करेंगे. And all 3 of them being out, and coincidentally all because of hamstrings, just shows about the fact कि this is not only just bad squad planning, of course, but this is also bad luck. आपके 4 अटैकर्स जब आउट हो जाते हैं, जिनमें से 2 की सीजन एंडिंग इंजरीज हो जाती हैं, जेसूस की ACL एंड हैवर्ट्स की हैमस्ट्रिंग, स्क्वाड प्लानिंग बिकम्स एन इशू ऑफ कोर्स. कि आपने इस जनवरी में री एनफोर्स नहीं किया, आप बहुत वीक हो गए थे. एंड मे बी अगर हम जनवरी में एक स्ट्राइकर खरीदते तो हैवर्ट्स की इंजरी का दुख तो होता, बट शायद से उतनी पैनिकिंग नहीं होती, उतना गुस्सा नहीं आता. आई थिंक गुस्सा इस बात का आ रहा है दैट क्लब ने जनवरी में ये देखा कि हमने हेसूस की ACL कर ली, साका वॉज गॉन एट द मिडल और एंड ऑफ डिसम्बर, एंड बाकी सारे प्लेयर्स वर लुकिंग एग्जॉस्टेड. बोर्ड आया था जनवरी में मैचेस देखने के लिए. दे सॉ हैवर्ट्स वाज struggling, they saw other players are just exhausted. They saw Mikel Arteta publicly ask for signings. They saw Declan Rice say that I'll be very surprised if Arsenal don't sign anyone else in the forward line. So it was all laid out कि club को पता है, players भी कह रहे, manager भी कह रहे, we need forwards, we're very bit short. But club ने deliver नहीं किया. What do we end up doing was when Ollie Watkins was available for 60 million, club ने पैसे बचाने के चक्कर में 40 million की bid मारी and we missed out on Ollie Watkins. John Duran got sold instead by Aston Villa. They got their money and we ended up with absolutely nothing. What's frustrating is that the board wrote the season off in January. And I'm not saying कि अगर Havertz fit होता और Martinelli भी fit होता तो हम league definitely जीत रहे थे. There was a vanishingly small chance, but there was a chance. But मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है is that there was a lot of mystery कि Arsenal
चैम्पियंस लीग में क्या करेगी. आई डोंट थिंक एनी वन एक्सपेक्ट्स आर्सेनल टू विन द चैम्पियंस लीग, बट आई थिंक वी वर गुड इनफ टू मेक अ डीप रन यार. थर्ड, आप लीग फेज में मजाक मजाक में फिनिश नहीं करते हो. वी हैड सम टफ ओपोनेंट्स इन इंटर एंड एटलांटा, पीएसजी को हमने हराया होम पे, एटलांटा के साथ ड्रॉ किया. But that was without Odegaard and some other players. And then against Inter, we lost because of a stupid penalty. But the point was that there was a real chance to make a run till at least the semi-finals. And I think अब वो run की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है. Because I cannot imagine us going to San Siro or the Allianz Arena or the Bernabeu या Etihad या फिर बारसा का स्टेडियम Montjuic and आपकी forward line is Sterling, Trossard and Waneri. You cannot play Champions League games with these players. I'm so sorry. And so yeah, this season is now just for vibes. आप कुछ भी नहीं कर सकते. The league में we are not as bad. I think कि हम struggle करेंगे और हम suddenly 6th 7th पे पहुंच जाएंगे. And I don't think we're as good कि हम लीग जीत जाएंगे. चैम्पियंस लीग में कुछ भी हो सकता है. आई मीन एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग ब्रूज इज बीटिंग अटलांटा, तो चैम्पियंस लीग इज सरप्राइजिंगली कुछ भी हो सकता है. एंड इफ ब्रूज कैन बीट अटलांटा, एनी टीम कैन हैव देयर डे ऑन एनी डे. एंड जस्ट सैड कि बोर्ड ने ये चीज़ नहीं सोची. बोर्ड ने एक गैम्बल लिया एंड ये गैम्बल फेल हो गया. अगर मैं आपको कुछ कोपियम दे सकता हूँ, समथिंग टू कोप विद, समथिंग टू टेल यू इट्स नॉट ऑल डिजास्टर, इज़ द फैक्ट दैट वी हैव ईथन अनेरी एंड माइल्स लुइस केली, 2 प्लेयर्स जो हमने अकेडमी से निकाले हैं, जो डेफिनेटली हमें मैनी मल्टी मिलियन पाउंड्स बचाएंगे. एक अच्छा लेफ्ट बैक स्लैश सेंटरमिड एंड एक राइट विंगर स्लैश अटैकर. इस मार्केट में कीमत इज़ अराउंड 70-80 मिलियन. वी जस्ट सेट 70-80 मिलियन फ्रॉम आवर अकेडमी. द अदर गुड थिंग इज़ दैट दिस शुड शो द बोर्ड की अकेडमी में कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है एंड कितना टॉप टैलेंट को रिटेन करने की ज़रूरत है. अभी चीडो ओबी मार्टिन होता तो दिस वाज हिज मोमेंट, बट ही इज़ प्लेइंग इन अंडर 18s फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बट इफ़ यू हैड अ गुड अकेडमी विद गुड टैलेंट, बिकॉज अभी भी ईथन अनेरी ने सिर्फ एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट ही साइन किया है. ही इज़ नॉट साइंड अ फुल फुटबॉलर कॉन्ट्रैक्ट जो 4-5 साल का होता है. ऑल ऑफ आर टॉप टैलेंट, साला एडीन, एडन एवन, इन सब ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हैं. एंड ऐसी सिचुएशंस पे जब आपका क्लब को एकेडमी की ज़रूरत हो सकती है, आपके पास वो टॉप टैलेंट नहीं है. आई मीन पीपल आर सेइंग नेथन बटलर ओयाडेजी है, बट बटलर ओयाडेजी हैज़ हैड 0 goals फ्रॉम 26 अपीयरेंसेस इन प्रीमियर लीग 2 एंड उसका लोन भी टू लीग 1 साइड आई थिंक लेटन ओरिएंट कुछ खास नहीं रहा था. So Butler Oyadeji is not ready for Premier League football and Champions League football. That is तो 100% done. But the sad part is we don't have academy talents जिन पे हम rely कर सके beyond Miles Lewis Kelly and beyond Ethan Nwaneri. तो academy पे भी invest करने का अब ज़्यादा incentive मिल जाएगा बोर्ड को, especially अगर वो penny pinching करना चाहता है. अब बात करते हैं the 3 characters in the story of Arsenal. ये है मिकेल आर्टेटा, ये है द रेस्ट ऑफ द बोर्ड. इसमें टिम लुइस, जेसन एटो, रिचर्ड गार्लिक आ जाते हैं. एंड थर्ड इज ओनर, विच आर द क्रॉन्की. आर्सेनल की सारी प्रॉब्लम्स को जो भी 5-6 साल से हो रहा है, कभी ट्रॉफी नहीं जीते, ये सब वगैरह, इस साल की इंजरीज, दिस वाज सपोज टू बी आवर ईयर. यू कांट पिन इट डाउन टू वन पर्सन और वन एंटिटी एंड वन रीज़न. आर्सेनल का ये सीज़न का रीज़न इज़ नॉट जस्ट इंजरीज, इज़ नॉट जस्ट स्क्वाड प्लानिंग, is not just Kroenke's, is not just Ato की ambition और Tim Lewis की ambition और Arteta की rotation. You can't pin it down to one thing. It's a combination of other things. And let's address all of these एक एक करके. सबसे पहले आते हैं Arteta पे. I think Arteta ने 2 साल पहले अगर आप मुझे बोलते कि Arteta rotate नहीं करता है, squad को अच्छे से नहीं utilize कर रहा है, तो मैं agree करता. Because we made changes way too late to the squad when it came to Arteta. He was a bit too nervous to change anything. हमारा lineup बिल्कुल set होता था. Which used to be Zinchenko, Gabriel, Saliba, Tomiyasu या Ben White. उसके बाद Xhaka, Partey and Odegaard. फ्रंट पे होते थे बुकायो साका, गैब्रियल हेसूस एंड मार्टिनेली. दे हमारा लाइनअप होता था 99% ऑफ द टाइम्स. दिस वाज आवर लाइनअप, ठीक है. और रैम्सडेल इन गोल. दिस वाज नेवर चेंज्ड until our players started getting injured. वो स्पोर्टिंग वाली गेम में सलीबा एंड टोमियासू इंजर हो गए थे एंड वी ब्रॉट इन रॉब होल्डिंग. हमने कीवियोर को बिल्कुल ट्राई नहीं किया था, हमने ट्रॉसार्ड को ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिया था. एंड वी स्टॉप्ड यूटिलाइजिंग आवर प्लेयर्स, वी स्टॉप्ड यूटिलाइजिंग आवर एंटायर स्क्वाड. स्मिथ रो केप्ट ऑन गेटिंग इंजर्ड बट वियरा स्टॉप्ड गेटिंग चांसेस. एज अ रिजल्ट प्लेयर्स जस्ट डिड नॉट डेवलप एज मच. एंड जब आप बहुत रिजिड हो जाते हो अपने स्क्वाड के साथ,
तो आप वर्कलोड उन पे ज़्यादा डाल देते हो. नाउ वी बिन लकी इन द लास्ट 2 years कि हमें ज़्यादा सीरियस इंजरीज को नहीं झेलना पड़ा. ऑफ कोर्स टोमियासो हैज़ बिन इंजर्ड, जिनचेंको हैज़ बिन इंजर्ड, पार्टे हैज़ बिन अनअवेलेबल, टिम्बर को ACL हो गया था. बट इन सारी चीज़ों के कारण भी अगर आप स्क्वाड का यूजेज देखो, बेन वाइट ने पूरा सीजन लास्ट सीजन खेला एंड इस सीजन ही इज़ नॉट प्लेड फॉर मोर देन 2 months बिकॉज वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया था. ही हैड टू प्ले थ्रू पेन लास्ट सीजन एंड अब उसकी नी में सर्जरी हो रही है. बुकायो साका को हमने निचुड़ते हुए देखा है दैट ही इज़ बिन यूटिलाइजिंग बुकायो साका ओवर एंड ओवर. दिस सीजन वी हैव बिन यूजिंग प्लेयर्स रियली रियली वेल, बट इट्स 2 years too late बिकॉज 2 साल के जो हमने स्क्वाड का यूटिलाइजेशन किया है, वी आर सफरिंग द रिजल्ट ऑफ द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टन प्लेयर्स फॉर द लास्ट 2 years एंड अब इसका परिणाम हमें इस साल भुगतना पड़ रहा है, जहाँ पे मार्टिन ओडेगार्ड्स बिन इंजर्ड, मार्टिनेली has been injured, Kai Havertz has been injured, White has been injured, Zinchenko stays injured, Tomiyasu stays injured, Gabriel's gotten injured, Saliba's gotten injured. Everyone's gotten injured except Thomas Partey and Leandro Trossard, seriously. So the misutilization of the squad for 2 years has now reared its head today. तो ये हो गया आर्टेटा की गलती. अब हम चलते हैं बोर्ड पे. बोर्ड इज़ टिम लुइस, रिचर्ड गार्लिक, जेसन एटो, इसमें आप एडू को भी डाल दीजिए, इसमें आप विनय वेंकटेशम को भी डाल दीजिए. मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक पूरे रिक्रूटमेंट जैसी चीज़ को या क्लब की स्क्वाड प्लानिंग को एक ग्रुप प्रोजेक्ट जैसी चीज़ बना देते हो, ये नो न्यू थिंग का मैंने पढ़ा था एंड आई रियली अग्री विद इट. व्हेन यू मेक एन एंटायर थिंग लाइक रिक्रूटमेंट अ ग्रुप प्रोजेक्ट थिंग एंड रिक्रूटमेंट फेल्स या स्क्वाड प्लानिंग फेल्स बिकॉज इट्स अ ग्रुप प्रोजेक्ट, आप एक बंदे पे ब्लेम नहीं डाल सकते. तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हु डू यू रियली ब्लेम? क्योंकि हमें तो नहीं पता, बट हु डू यू रियली ब्लेम फॉर द स्क्वाड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सीजन? क्या आप जेसन एटो पे या एडू पे ब्लेम करोगे? क्या आप रिचर्ड गार्लिक पे करोगे? क्या आप टिम लुइस पे करोगे? द रियलिटी इज आप किसी पे भी कर नहीं सकते बिकॉज चारों ने या पांचों ने मिलकर एक साथ चीज़ें करी हैं and we have suffered as a result. Because it's a group project, nobody takes accountability and that sucks. And so you have to have somebody accountable. One of the biggest problems जो हमने director of football and head coach का देखा है that consistently we have failed to land Arteta's number 1 targets. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Arteta की talent ID is the best in the world, but so many times he has wanted players जो हम नहीं ला पाए. चाहे ये मुद्रिक हो, चाहे ये काइसेडो हो, चाहे कोई और प्लेयर हो. ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आर्टेटा को चाहिए थे. सेस्को चाहिए था, हम सेस्को को 2 साल से चेज़ कर रहे हैं. हमें ट्रॉसार्ड की जगह मुद्रिक चाहिए था जो बिल्कुल नहीं है, चेल्सी ने हाईजैक कर लिया. वी वांटेड पेड्रो नेटो, हमें इस समर साइमन एडिंग्रा वगैरह चाहिए थे. मतलब वीव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो बोर्ड ने नहीं ला के दिए. एंड सो हमें सेकंड बेस्ट की तरफ जाना पड़ा, विच इज़ योर ट्रॉसार्ड्स हु हैज़ वर्कड आउट, विच इज़ योर किवियोर, विच इज़ फाइन. बट देन ऑल्सो अगर आप ये भी देखो, इस समर हम क्या लाएं? कैलाफियोरी, ऑल राइट, मे बी उसकी ज़रूरत शायद से नहीं थी. आई थिंक है, ही विल बी अ गुड प्लेयर, बट उस पर हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च दिए, 40 million. लुक एट मेरिनो, 35-40 million ऑन हिम एज वेल, नॉट यूज्ड, नॉट बिन ऑफ एनी यूज़. मिकेल मेरिनो एज सच. राया को हमने परमानेंट किया है, हम नेटो को लाए, हम स्टर्लिंग को लाए. इन द टाइटल विनिंग सीजन वी वांटेड इट टू स्टर्लिंग. बट बोर्ड का सबसे ज़्यादा ब्लेम मैं इस चीज़ पे देता हूँ कि बोर्ड इज़ नॉट एम्बिशियस. आप एम्बिशन 2 तरीके से दिखा सकते हो. या तो यू से टू द मैनेजर कि देखो वी फील दिस इज द बेस्ट एंड वी आर गोना गिव यू दिस प्लेयर, बड़ा प्लेयर ला के दो, ठीक है. अगर क्लब का एम्बिशन इज टू बी डीप इन द चैंपियंस लीग और मे बी इवन ड्रीम टू विन इट एंड विन द प्रीमियर लीग एंड वी गो फॉर द मेजर ऑनर्स, नॉट जस्ट द चैंपियंस लीग पोजिशंस, गो फॉर द मेजर ऑनर्स, एक्चुअली विन दैम. You cannot make your ambition just Mikel Merino, just Calafiori, Neto as the goalkeeper and Sterling as the attacker. And अगर आपने समर में ये चीज़ दिखा दी है एंड आपको 6 महीने का अच्छा खासा प्रूफ मिल गया कि दिस वाज नॉट इनफ, कि जनवरी में आपको हेसूस पे रिलाई करना पड़ रहा है और उसकी ACL हो गई एंड आपके बेस्ट प्लेयर साका को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, आप कैसे ऑली वॉटकिंस हु वाज अ PFA कंटेंडर अलॉन्ग विद फिल फोर्डन एंड अर्लिंग हालैंड, आप उसको कैसे उसके लिए 40 मिलियन दे सकते हो? आपको नहीं मिला. आप व्लाहोविच ला सकते थे, नहीं, आपने सोचा हम व्लाहोविच तो नहीं लाने वाले. सेस्को के साथ आपको अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी, लाइप्जिग के साथ, तो आप सेस्को के लिए भी नहीं गए. लास्ट सीजन हमने जोरेल हाटो के साथ भी यही किया था. आप जोरेल हाटो के लिए जाना चाहते थे, आप जोरेल हाटो के लिए, यू वांटेड टू रिस्पेक्ट आयाक्स, जोरेल हाटो के लिए भी आप नहीं गए, ठीक है. सो फिर एम्बिशन कहाँ है? Matthias Tell was available on a loan. You did not want Matthias Tell on loan because we do not want to bring another body. And now we have no bodies. अगर ambition नहीं है बोर्ड में, तो बोर्ड को निकलना पड़ेगा, सीधी सी बात है. आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, आप फैंस को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप मैनेजर का टाइम वेस्ट कर रहे हो. और मैं आपको अभी बता रहा हूँ,
इस पूरे बोर्ड वर्सेस आर्टेटा में आर्टेटा इज़ द मोस्ट एम्बिशियस मैन. इस टट्टी स्क्वाड के साथ अगर आप प्रीमियर लीग में अभी भी सेकंड हो, एज ऑफ रिकॉर्डिंग वी आर 6 पॉइंट्स बिहाइंड लिवरपूल. आप चैम्पियंस लीग में टॉप 8 में फिनिश करे हो, आप थर्ड पे हो, एंड येस यू आर आउट ऑफ द कैराबाओ कप, यू रीच द सेमीज एंड यू आर आउट ऑफ द FA कप एंड यू लॉस्ट टू यूनाइटेड. बट वी प्ले some damn good football when we have to. We are defensively solid, attacking wise we're not the best, and so the manager has the right state of mind when it comes to ambition of the club and standards of the club. The board is filled with lawyers. जब हम कहते हैं मैन यूनाइटेड के पास एड वुडवर्ड था, हमारे पास टिम लुइस है जो एक लॉयर है, जो पूरा रिस्क अवर्स है, जिसको कुछ नहीं आता. एंड सबसे बड़ी इनकॉम्पिटेंसी इस बोर्ड की एक चीज़ पे दिखती है, दैट द बोर्ड हैज़ नॉट hired a director of football after the summer window. Edu went during the summer and towards the end of the summer window, by the way. From August to लेके दिसंबर तक आप एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल फाइनलाइज नहीं कर पाए. मैं कहता आप जेसन एटो को ही रख लेते हैं, उसको ही परमानेंट कर दो, बट किसी को तो रखो. आपने एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी नहीं रखा है. सो नो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, नो साइनिंग्स इन जनवरी, जीरो एम्बिशन, पेनी पिंचिंग. क्या है? तो या तो आप हमें बता दो कि हमारा एम ही यही है कि हम टॉप 4 आएंगे, फिर आप आर्टेटा को 15 मिलियन क्यों दे रहे हो साल के? उसको भी जाने दो यार, सेव मनी देयर. ले आओ नूनो एस्पिरिटो सैंटो को भाई, ले आओ. हम टॉप 4 के लिए लड़ते रहते नूनो एस्पिरिटो सैंटो के लिए. फिर एमरी में क्या खराबी थी? एमरी भी चैंपियंस लीग तक ले आया था ऑलमोस्ट, एंड में हम बस हक गए थे थोड़ा सा. एमरी को ही रख लेते, एमरी को क्यों फिर निकाला? सो जस्ट गेट मैनेजर्स लाइक अभी थॉमस फ्रैंक को लिया ना, उसके लिए स्टेप अप हो जाएगा, उसको पैसे भी कम देने पड़ेंगे और वो टॉप 4 तक लाएगा, हम खुश हो जाएंगे. बट एटलीस्ट बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट द एम्स आर, बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव एक बोर्ड जिसका एम है टाइटल जीतना, वो आपको ये टूल्स एंड प्लेयर्स ला के दे सकता. अब फाइनल बात आती है इसमें क्रोंकीज़ की. क्रोंकीज़ ने हमें काफ़ी हेल्प करी जब हम चैम्पियंस लीग तो छोड़ो यूरोप से बाहर हो गए थे, बिकॉज देन दे रियलाइज्ड पैसे की हिट हो रहा है. अब तो बहुत पैसे के हिट हो रहा है, कमर्शियल रेवेन्यू गिर रहा है, स्पॉन्सरशिप से पैसे नहीं आ रहे हैं. यू नो स्पॉन्सरशिप में क्लॉजेज होते हैं कि आप यूरोपियन चैंपियंस लीग में जाओगे तो ऐसा होगा. स्टार्टेड लूजिंग मनी. उन्होंने बहुत पैसा इंजेक्ट किया, उन्होंने प्लेयर्स दिलाए, और वो हमें एक इस ब्रिंक तक ले आए कि हम सपने देखना शुरू कर दें. बट एट द एंड ऑफ इट क्रोंकीज़ को लग रहा है कि उन्होंने आर्टेटा को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आर्टेटा तो अब रहेगा. दे हैव गॉट अस दिस क्लोज एंड देव अबैंडन्ड अस. हमारे पास जब चैंपियंस लीग नहीं था, हमें बोला जाता था कि आर्सेनल को सेल करनी पड़ेगी एक इंपॉर्टेंट साइनिंग के लिए, आर्सेनल को बहुत पैसे डालने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट साइनिंग के लिए, जस्ट बिकॉज वी आर इन द यूरोपा लीग, हमारी इनकम कम हो गई है. अभी आर्सेनल के पास रिकॉर्ड रेवेन्यू आ रहा है. वी आर behind Manchester City and Manchester United in terms of revenue. We're the third biggest revenue earning club when it comes to the Premier League. Broadcasting rights से तो definitely. Commercially हमने deals renew करे हैं, commercially we are earning a lot. So पैसे तो बहुत हैं. अब चैम्पियंस लीग भी है तो प्रेस्टीज भी आ गया. अब क्या कारण है पैसे नहीं खर्चने का? जब चीज़ें ख़राब थी, जब चैम्पियंस लीग में नहीं थे, जब यूरोपा लीग में नहीं थे, जब आप यूरोप में नहीं थे, तो समझ आता था कि भाई you know this is how we're losing money and this is how broadcasting revenue is hit and this is why we can't attract the best players in the world. अब तो सब है. अब जब आपको सेकंड से फर्स्ट वाला स्टेप लेना है, अब आप कैसे झुक सकते हो यार? प्रोटेस्ट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है. देयर नीड्स टू बी प्रोटेस्ट, दीज ओनर्स नीड टू गो. यू इफ़ यूर ओनिंग अ फुटबॉल क्लब, भाई आई एम सॉरी बट ओनिंग अ फुटबॉल क्लब डजेंट मीन कि आपने इतने पैसे दे दिए ना, आपका काम हो गया, अब आप काउच पे बैठ जाओ और बस तमाशा देखो. Being an owner of a football club is a tough job. It's an expensive job, but you took it willingly, bhai. If you're earning money from the club, you also have to give money from the club. Cronkies का मेरे को एक confusing चीज़ सबसे ज़्यादा ये लगता है that they run Denver Nuggets, which is one of the most successful and well-run franchise in sports in the NBA. They won championships. They've had generational players. They make some really good moves जब trade deadline and squad building पे आती है. They hired the right people to run as GM for the Denver Nuggets. They built a fantastic stadium for the LA Rams. They have a really good coach in Sean McVay. They won the Super Bowl as well under the Kroenke ownership. तो आप US के sports में अच्छा कर लेते हो, especially NFL में और NBA में. What is wrong with Arsenal? It's a different sport, agreed. But you know how to run the sports franchises, yaar. So if you look at this three-way वाला thing, I'd put the most blame on the board कि ठीक है, owners ने आपको रखा है, how are you not fulfilling the owners' obligations? Then I'd put the blame on Kroenke and then I'd put it on Arteta for not utilizing his squad and overusing his squad.
stuff like that. मैं ये नहीं मानता दैट आर्टेटा की टैक्टिक्स आर अ प्रॉब्लम कि हमारे फुल बैक्स की तरह हमारे विंगर्स को खिलाते हैं एवरीथिंग. The tactic works is why we are here where we are. You cannot unfortunately play like Liverpool because we don't have a Van Dijk, we don't have Alisson, we don't have Trent, जो उनकी स्किल सेट से अलग है. हम एक पर्टिकुलर तरीके से खेलते हैं और वो तरीका हमारे लिए काम करता है. सो अब क्या इसका नुकसान होगा? इफ़ आर्टेटा लीव्स आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. द गाय इज़ टू एम्बिशियस. ही इज़ गोना टेक अ 1 year ब्रेक. हम उसको फिर किसी और क्लब में जाते हुए देख लेंगे जिसमें मे बी 10% ज़्यादा एम्बिशन होगा एंड यू विल सी हिम फ्लरिश. तब सबको पता चल जाएगा दैट द प्रॉब्लम एट दिस टाइम एट आर्सेनल वाज नेवर द मैनेजर. द मैनेजर इज़ नेवर द प्रॉब्लम इन दिस केस. मैं तो नहीं मानता ही इज़ नॉट द प्रॉब्लम. ही हैज़ अ शेयर ऑफ द ब्लेम बट ही इज़ नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट द क्लब. जब वो किसी और क्लब में जाके जीतने लग जाएगा तब इस ओनरशिप को समझ आ जाएगा कि उन्होंने हाथ से सोने की मुर्गी छोड़ दी है. Yeah, it's a big video and I had to get a lot off my chest, but this had to be said by. The good thing is I don't think we'll be really that bad कि हम चैम्पियंस लीग से गिर जाएंगे. अगर आप वेरिएंसेस रन करोगे, अगर आप लोगों की जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, I mean we have to go on a generationally bad run when it comes to getting out of the Champions League. तो 70 पॉइंट्स लिया, टॉप 5 हैंडल कर लो बिकॉज अब सेकंड फिनिश करो या फिफ्थ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्लब को. गेट द चैम्पियंस लीग, गेट दोस 20 पॉइंट्स इन द लास्ट 14 गेम्स. डू योर बेस्ट इन द चैम्पियंस लीग भाई. अब क्या ही कर सकते हैं. एंड या वी गो अगेन नेक्स्ट सीजन भाई. इट्स डिसअपॉइंटिंग बट द बोर्ड हैज़ रॉयली फक्ड अस. सो या, सी यू ऑल सून. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है. सी यू ऑल सून.